Hi everyone, how are you all? All good? Okay, so आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू आई मीन इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। होप पीपल आर already watch those video, right? So today I'm going to start the second part, I mean part 2 of electrochemistry, that is electrolysis, right? So let's start. See, what is it? Part 2 of electrochemistry. That is known as, yeah. ऑलरेडी मैं से लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ओनली गैल्वेनिक सेल्स के ऊपर, जहाँ हमने नॉन स्टिक्वेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ नॉन स्टिक्वेशंस या thermodynamics involves in non-stick or in galvanic cells. Lot of things I discussed already in the part 1 of electrochemistry, right? So today I'm going to discuss the part 2 of electrochemistry. Yeah. सो इन पार्ट टू व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली हम इधर क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, राइट? ओके, मार्कस हेडिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, electrolytic cell. Okay, so now the first question is, what do you mean by electrolysis? Actually, see, in the initial of the chapter I discussed that electrochemistry is started under two categories. One is called galvanic cells, another one is electrolytic cells, right? What do you have to do in galvanic cells? Actually, in galvanic cells, actually what happened, chemical energy is converted into electrical energy by spontaneous reactions, but right. On the other hand, in electrolytic cells, what we have to do, we have to do the non-spontaneous reactions to spontaneous by supplying electrical energy. Basically, here electrical energy is converting into chemical energy, right? So before I'm going to discuss the electrolytic and electrolysis of the cell. So the very first question you have to know that what do you mean by electrolysis? What is it? Electrolysis. Electrolysis. See, electrolysis means it's a, you can say, chemical decompositions of a substance using electrical energy, right? Or electricity, isn't it? And obviously जो हम करंट पास करेंगे, इधर वो जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो मोल्टन स्टेट में हो सकता है और इन एक्वस स्टेट में हो सकता है। तो हम उन डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे कि अगर दैट मीन्स जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस अगर मोल्टन स्टेट में है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो एनोड में कौन सा मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स मतलब डेपोजिटेड होता है या फिर गैस होगा तो लिबरेटेड होगा, राइट? सो एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। कहने का मतलब ये सारा चीज जिधर होगा, दैट मीन्स जिस सेल में हम करवाएंगे उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बोलेंगे, राइट? सो बिफोर दैट वन यू हैव टू राइट दैट व्हाट डू मीन बाय एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस। आई ऑलरेडी टोल्ड द केमिकल डिकम्पोजिशन, the chemical decomposition of a substance using electricity is called electrolysis, right? Okay, the second point you have to remember that current is passed.
current is passed in molten state in molten state or in aqueous state. Right. Yeah, one more important thing you have to know that electrolysis is carried out. Actually, this process electrolysis is carried out in electrolytic cell. In electrolytic cell. Good. So let us example we are going to see the electrolysis of molten NaCl. Okay. For example, electrolysis of molten NaCl. इधर हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है, कृपया ध्यान दें इधर. एक्चुअली इधर क्या है, कोई एक मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें सॉल्यूशंस में क्या लगा है, मोल्टन NaCl. कहने का मतलब इट्स अ पेस्ट लाइक NaCl वेयर एक्वास मतलब एक्वास इज नॉट देयर, दैट मीन्स मॉइस्चर इज नॉट देयर, राइट. सो इसको क्या किया हमने डीसी सोर्स ऑफ बैटरी से दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिए. पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे ऑब्वियसली, एंड नेगेटिव टर्मिनल्स को हम क्या बोलेंगे, कैथोड. सो इन गैल्वेनिक सेल्स कैथोड का हम जो साइन लिए थे वो क्या था, पॉजिटिव्स था, क्योंकि उसमें हमने साइन को डिसाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइक लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दैट मीन्स उसमें जो पैरामीटर्स था उसमें कैसे डिसाइड किए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहा था. दैट मीन्स एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसलिए कैथोडिक जो इलेक्ट्रोड था उसको हम पॉजिटिव लिए थे. और एनोड जिसमें सपोज टू बी गैल्वेनिक सेल्स का जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है डेनियल सेल्स, उसमें अगर उसके बात करें तो हम क्या करेगा, जडन जो एनोड में था उसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो Na+ कहा जा रहा, दैट मीन्स Zn2+ कहा जा रहा था, सोल्यूशन में जा रहा था. तो ड्यू टू कन्वेंशंस ऑफ साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, राइट. सो दैट्स वाई उसमें एनोड हम नेगेटिव लिए थे. सो हियर दैट मीन्स हमने डीसी सोर्स ऑफ बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए. ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल्स को हम क्या बोलेंगे, कैथोड, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा उसको कैथोड बोलते हैं, राइट. ऑब्वियसली इसमें जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है एंड एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है. सी नाउ लेट अस इमेजिन द कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, राइट. यू कैन से molten NaCl. As you know that NaCl is a ionic compounds obviously, so it will have the cation and anion. Obviously sodium is the cation, right? Okay. So this positive charge inside of the electrolytic solutions, it will attract towards cathode, and this negative charge to attract towards anode. I know that means we know opposite charges will attract to each other, right? So what is the scenario here? Let me explain. For example, here NaCl is there, right? So it will dissociate it into Na+ and Cl-, obviously. And see, as we all know that at cathode reduction reactions takes place and anode oxidation reactions takes place. So इसको हम देखते हैं. सी कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस होता है. ऑब्वियसली रिडक्शन रिएक्शन होगा. रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव NaS, right. So we can say this NaS, that means sodium solid, deposited at cathode, deposited at cathode of sodium metal, right. Okay. ऑन द अदर हैंड एनोड में क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. ऑक्सीडेशन कैसे होता है आपको पता ही है, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. सो यार Cl नेगेटिव इज देयर, सो इट विल फॉर्म Cl2 गैस. इफ़ यू बैलेंस द इक्वेशंस देन लूजिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स. कहने का मतलब इधर हम क्या कह सकते हैं कि जो Cl है उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया. सो वी कैन से क्लोरीन गैस विल
liberated or evolved at anode. आई बात समझ में? ऑल गुड. नाउ लेट्स सी, ऐड करके देखते हैं इस रिएक्शंस में क्या होता है. सी, दिस नेट इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट, राइट. सो द फाइनल इक्वेशन ऐसे देखेगा, Na+Cl- to give what? To give Na solid plus half Cl2 gas. Or yeah, obviously here Na plus and Cl minus electrostatic attraction is there, so we can write this equation as well like this. NaCl to give after electrolysis sodium at cathode and yeah, chlorine gas at anode. Okay, now one more important thing you have to remember here, that is electrolysis of pure water. Electrolysis of pure water. See, electrolysis of pure water में क्या होगा, वाटर अगर ब्रेकडाउन है तो ये इधर H2 गैस बनाएगा प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस बनाएगा. दैट्स इट. ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो हियर दैट या जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उधर हम ना AC करंट यूज़ नहीं करते, ओनली DC करंट यूज़ किया जाता है. वो क्यों? डू यू नो द रीजन? सो इन नोट यू हैव टू राइट हियर that only DC source should be used for electrolysis, as reaction will be reversed, for each alternating cycle, right. So AC current source cannot be used. AC current source cannot be used. तो इसलिए हम AC करंट सोर्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हर एक ऑल्टरनेटिव पे अगर रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाए तो हमने डिज़ायर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट हम को नहीं मिलेगा. इसलिए हम DC करंट यूज़ करते हैं, AC करंट यूज़ नहीं करते. कृपया करके इस लाइन को याद रखिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. ठीक है. नाउ यू हैव टू look one amazing thing here, that why the process is non-spontaneous. If you look at it carefully, that sodium is a metal, right? Of course it's a metal, right? and धरती पे मेटल आया है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए. अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बट हियर आपने देखा होगा तो कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, विच इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट. सो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम करवा रहा है बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज ए लाइक दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट. गुड. सो व्हाट इज इट? See, it's a spontaneous process. When sodium is a metal, obviously, right, it will form cation, Na plus, obviously gases form, plus electron. It is a spontaneous process. It is a spontaneous. But here what we have to do, that sodium plus, that means cation will accept one electrons and it will convert it into sodium solid, I mean metal. Obviously it's a non-spontaneous process. Non-spontaneous process which is carried out by the supplying of electricity, right. So in electrolytic cell, what you have to do, a non-spontaneous reaction is carried out by using electrical energy. That is, you can say, in an electrolytic cell
in an electrolytic cell a non-spontaneous reaction, a non-spontaneous reaction is carried out using electrical energy, okay, shabash, got it, yeah. Now we are going to discuss प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. हम अभी सीखेंगे कि कोई भी सपोज आयनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है, आपको पूछ सकता है कि इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से एनोड एंड कैथोड में क्या क्या लिबरेटेड होगा और डिपॉजिटेड होगा, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज़ लिटिल वाइट कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स. स्टूडेंट्स आर एज्यूमिंग लाइक दैट, राइट, बट आई एम हेयर to make it simple for you guys, so please stay connected and stay motivated. You don't need to worry about this topic. I will make it very simple for you, okay. So what is it? Product of electrolysis. Product of electrolysis. See, before I'm going to discuss the product of electrolysis, you should be familiar with oxidation of water and reductions of water, right? So what is it? Oxidation of water. Oxidation of water. For example, see, in case of oxidation, you know very well, right? होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली. लेट मी प्लीज टेल मी वन थिंग दैट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हियर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, राइट, एंड हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली इट इज़ a +1, राइट. सो एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 से ज़्यादा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं, राइट. तो ऑब्वियसली इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन का बढ़ेगा, राइट. तो कैसे होगा? ऐसे हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस, दैट मीन्स हियर द ऑक्सीजन स्टेट इज 0, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय रिलीजिंग ऑफ 2 electrons and 2 H+, which is aqueous, right. So here you have to remember one important thing, that is standard oxidation potentials of it. How much it is? -1.23 volt, right? Okay. Or you can write these equations in this way: 2 times of H2O, which isn't liquid obviously, and it will give what? Oxygen gas plus 4H plus aqueous plus 4 electron. Okay, and oxidation. Obviously oxidation, standard oxidation potential of this reaction is how much? -1.23 volt. कृपया इसको ना भूलें. And one more important thing you have to know, or here see, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में हम एन फैक्टर को कैसे निकलते हैं? सिंपल सी बात है. अगर मैं पूछूँ इस वाटर में इसका एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर ऑफ वाटर कितना होगा, नेट इलेक्ट्रॉन सेंस कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है. तो वाटर का एन फैक्टर इन दिस रिएक्शंस इट विल कम आउट हाउ मच? 2. अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है, ऑब्वियसली एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन इट विल कम सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ऑब्वियसली इट विल 4, राइट. एंड एन फैक्टर ऑफ H+ आयंस ये कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 = 1, राइट. इट्स ए वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके. Now look about the reductions of water, right? See, I'm telling you, this is a very much important while you are going to write the product of electrolysis, right? So कृपया ध्यान दें, इधर उधर ना भटके. Reduction of water. See,
रिडक्शन ऑफ वाटर में क्या होगा, ऑब्वियसली इधर वाटर है, मान लेते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म पे है। आप एक बात बताओ कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर गिरता है। यस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली गिरता है। तो अब खुद सोचो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका गिरेगा, ऑक्सीजन का। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑक्सीजन का मिनिमम जो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, -2 के नीचे जाता नहीं है, राइट। तो किसका गिरना चाहिए, हाँ हाइड्रोजन्स का इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ेगा, ऐसे इट विल कन्वर्टेड इनटू सपोज हियर दिस वन 2H2O which is gas plus 2OH negative, good, right? So you have to remember these equations, and as well as the standard reduction potential of this equation is -0.827. You have to remember this one, bold, right? Okay, see here you can notice that the oxidation potentials of water is -1.234. आप सोच सकते हो कि अच्छा रिडक्शंस करना है, इसको उल्टा कर दो, इसका पॉजिटिव ले लो। नहीं, इसका जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का वैल्यू होता है वो कितना आता है, -287 वोल्ट। ये डिफरेंट है, राइट। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, नोट E naught oxidation of water is not equal to E naught magnitude wise, right? Reduction potential of water, कृपया इसको याद रखिए। Okay, now we are going to see the electrolysis of molten NaCl, right? Up to do you have any problems? If you have any problems, then please let me know in the comment sections. I will definitely reach out to you. Okay, so now I'm going to discuss the electrolysis of molten NaCl. Electrolysis of molten NaCl. See, obviously molten NaCl में क्या रहेगा, ओनली कैटायन एंड एनायन रहेगा, किसका, NaCl का। दैट मीन्स सोडियम प्लस एंड Cl माइनस। मोल्टन में एक्वा सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। ये वेरी बहुत बेसिक सा है, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि मोल्टन NaCl में क्या रहेगा, ओनली Na प्लस एंड Cl नेगेटिव रहेगा। एंड ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल दैट जस्ट few minutes ago I discussed that कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस होता है। तो ऑब्वियसली इसमें जो नेगेटिव है तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे इसके तरफ, राइट। तो क्या होगा, Na प्लस विच विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्टिंग इनटू Na सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि इसमें सोडियम मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। सोडियम मेटल will be deposited at cathode। कैथोड में क्या होगा, सोडियम मेटल डिपॉजिटेड होगा, राइट। सो नाउ टेल एनोड में क्या होगा। ऑब्वियसली चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कैथोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होता है और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, राइट। हाँ, हालांकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा और पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इधर क्या है, क्लोरीन है। तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस by losing 1 electrons. If you balance the equations, it will look like that one, right? So you can say here, what is it, chlorine gas will be obtained at एनोड। एनोड में क्या होगा,
क्लोरीन गैस liberated होगा, right? So if you want to write the net cell equation, it will look like that one. NaCl will get dissociated into NaS, that means sodium metal will be deposited at cathode and the chlorine gas will be liberated at एनोड. शाबाश, दैट्स इट. मोल्टन NaCl में इतना ही याद रखना है. सिंपल सी बात है. देखो इधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. ये जो Na+ है एंड Cl- है एंड दैट मीन्स कैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ऑब्वियसली ये जो कैथोड है ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. और कैथोड में ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शंस होगा और इसमें सोडियम मेटल डिपॉजिटेड होगा, राइट. एंड एनोड में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. एंड ऑफ कोर्स यू कैन से हियर दैट क्लोरीन गैस विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड. गॉट इट? ओके. नाउ आपको एक बात को ध्यान देना है. इधर हम अभी देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोलर NaCl एक्वा सॉल्यूशंस. ये 1 मोलर का क्या मतलब है, अब यू विल गेट टू नो ग्रेजुअली what does it mean actually. If the concentration will change, then yeah, the product which will get deposited or liberated at anode and cathode will also change, right? So कृपया ध्यान दीजिए. हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोलर NaCl aqueous solution. 1 मोलर का मतलब क्या है, अब धीरे धीरे जान जाओगे कि 1 मोलर का मतलब क्या है, राइट. सो यू डोंट नीड टू वरी. okay. See, here we are going to discuss about electrolysis of 1 molar NaCl aqueous solution. aqueous solutions बोले तो इस तरह जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है. नाउ थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि रिडक्शन ऑफ वाटर से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से क्या होता है. वो पिक्चर दैट मीन्स वो चीज़ें ना इधर आपको कम में आएगा, आपको ध्यान से सुनना है. देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें कैथोड होता है, एनोड होता है. क्या क्या होता है, कैथोड एंड एनोड होता है. एंड आपको पता ही है एनोड जो होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट. और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इजंट इट. सो इसमें एक मोल्टन क्या है, मोल्टन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें सिंपल चीज जो अपने केमिकल सब्सटेंस लिए है, दैट मीन्स मोल्टन NaCl, उसमें ओनली कैटायन एंड एनायन ही रहेगा. कहने का मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड्स का, राइट. सो इसमें देख रिडक्शंस, कैथोड में रिडक्शंस होता है, इधर इसमें वाटर है, राइट. दैट मीन्स इधर इसमें क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ Na+ हो सकता है और रिडक्शन ऑफ H2 हो सकता है. हम देखेंगे इट इज़ बेस्ड अपॉन देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स, राइट. सो सी इधर क्या क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ Na+ और क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ H2O. सिमिलरली एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, इधर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव और ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, राइट. सो नाउ हम देखेंगे अभी कि कैथोड में कौन सा होगा और एनोड में कौन सा होगा. सी इन केस ऑफ कैथोड इसमें दो चीज़ें हैं. पहले मैं डिटेल्स में बताऊंगा, उसके बाद कुछ ट्रिक है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को यू चुटकियों में लिख सकते हो, राइट. सो प्लीज़ कृपया ध्यान दिए, इसको कैसे हम करेंगे. देख रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस में क्या होगा, इधर कैटायन दैट मीन्स Na+ है, राइट. सो ऑब्वियसली एक्वास फॉर्म पे रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो एक्वास है, मतलब वाटर है, राइट. इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इधर ये एक सोल्यूशन होगा Na सॉलिड. कृपया ध्यान दें, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शंस पोटेंशियल्स है ये कितना होता है, -2.76 वोल्ट होता है. आप अभी बोलोगे कि सर ये रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना होगा क्या. हाँ, कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा, बट ओवरऑल हर एलिमेंट्स के लिए आपको याद नहीं रखना पड़ेगा. यू नो नीड टू वरी, राइट. एंड ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इसका
जो रिडक्शन पोटेंशियल से इतना है, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान आप याद ही रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही रखना है, बट हाँ you have to know the potentials below while you are going to study the product of electrolysis in details, right? So please ध्यान दीजिए। देखिए वाटर का ऑब्वियसली हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, वाटर का अगर रिडक्शंस होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था रिडक्शन ऑफ वाटर में क्या होता है। कहाँ है, इधर। हाँ, इधर यू हैव टू डू वन थिंग, व्हाट इज इट, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, ऑब्वियसली ये रिएक्शंस होता है, राइट। तो नाउ सी हियर, वाटर का रिडक्शंस के लिए क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव, राइट। और ऑब्वियसली इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा वो कितना होगा, -0.827 वोल्ट होगा। Now we have to compare the SRP value of that means Na plus and H2O। देख ऑब्वियसली इसमें जो क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यू कितना है, -0.276 वोल्ट और इसका कितना है, -2.87 वोल्ट। ऑब्वियसली क्या होगा, ये मोर है, कौन, वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है ना वो ज़्यादा है, मोर पॉजिटिव, राइट। ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा वो रिडक्शंस होगा, isn't it? So you can say here that is reduction of water will favor, reduction of water will favor of cathode and H2 gas will be evolved and H2 gas will be evolved, मतलब कैथोड में H2 गैस इवॉल्व होगा, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ सी एनोड में क्या होगा, इधर क्या हो सकता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, राइट। सो हम इधर भी देखेंगे। देखिए जो Cl2 है, फ्लोराइड आयन है, वो क्या करेगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके लिए हम जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना होगा, -1.34 वोल्ट होता है। कृपया ध्यान दीजिए, ये कितना होता है, -1.3435 वोल्ट होता है, राइट। और वाटर का जो क्या होगा रिडक्शन से, इसके जो इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड करता है एंड 4H प्लस बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो हियर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इट इक्वल टू -1.23 वोल्ट होता है। नो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यू नो ऑलरेडी दैट, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को फेवर करेगा। देखो इसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो मोर है, क्योंकि ये नेगेटिव में कितना है, -1.23 और ये नेगेटिव में कितना है, -1.35 वोल्ट। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन बाजी कौन मरेगा, वाटर। सो हियर यू कैन राइट और यू कैन से व्हाट विल हैपन हियर, सिंस SOP ऑफ वाटर is more positive, right? So oxidation of water should favor and oxygen gas should be liberated, at एनोड। आपको ऐसा ही लग रहा होगा, बट कृपया ध्यान दीजिए ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, राइट। बहुत स्लो मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इसके लिए जो 1.3223 वोल्ट इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बट एक्चुअली इतने वोल्टेज में ऑक्सीडेशंस नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कितना लगता है, 0.24 वोल्ट लगता है, राइट। कहने का मतलब आप एक एग्जांपल लीजिए,
सपोज टू भी मान लीजिए कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है, राइट, और आप बहुत ही ठंडे जगह में गए हो, मान लीजिए कि वो बहुत ही पुराना हो चुका है, मान लीजिए आपके जो स्टार्ट करने के लिए सेल्फ नहीं है, आपको बाइक की उसको स्टार्ट देना होता है, राइट। ओके, सपोज़ आपने क्या किया, बहुत ठंडी जगह पे गए हैं, मान लो कि हमारे कंट्री में जो ठंडी जगह होता है, सपोज टू भी कश्मीर गए हो, राइट, उसमें बर्फ़ के दिन में ठंडे ठंडे बर्फ़ गिर रहा है, तो सपोज टू भी आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, जो आपके होम प्लेस में जितने इजीली उस गाड़ी को स्टार्ट कर पाते हो, मतलब एक किक में स्टार्ट हो जाता है। क्या मेरा प्रश्न ये है कि आपने सेम एनर्जी खर्च करके, मतलब एक किक में आप ठंडे जगह पे उसको स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो इंजन ठंडा हो जाता है, मतलब उसको गर्म करने के लिए आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। कहने का मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी लो होकर रखा है, दैट मीन्स दैट्स वाई यू हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी टू स्टार्ट योर मोटरसाइकिल, राइट। सेम कंडीशंस के, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस होगा, राइट। सेम कंडीशंस क्या है, इधर है कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जैक्टली कितना है, -1.23 वोल्ट, इतने वोल्ट में ऑक्सीडेशंस नहीं होता है। तो उसको भी ऑक्सीडेशंस करवाने के लिए क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ मतलब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, और वो वोल्टेज कितना होता है पता है, वो होता है 0.24 वोल्ट, जिसको हम ओवर वोल्टेज कहते हैं, और ये एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है और एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। कहने का मतलब ये है, सुनिए, ऐसा है, ये ऐसा नहीं होगा, कृपया ध्यान दीजिए। क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज है आपने देखा 1.23, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट, ये इतना वोल्ट है। बट ओरिजिनली ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, इसमें हम जो बैटरी अप्लाई किए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, वो एग्जैक्टली 1.48 वोल्ट पे जाके उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। तो इनमें से जो डिफरेंस है वो कितना आया, 0.24, राइट। ये जो 0.24 है वोल्टेज जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है ना, ये बहुत ही क्या है, स्लो प्रोसेस है। क्या है, स्लो प्रोसेस, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज यूज़ कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। क्या बोला जाता है, ओवर वोल्टेज बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ओवर वोल्टेज है, ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइडेड, राइट। सो अब जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इधर क्या होगा, ओवर वोल्टेज इधर मिलाओगे कितना, 1 कितना है ये, देखिए ये कितना आ रहा है, -1.48 वोल्ट होता है एग्जैक्टली, इतने वोल्टेज पे ऑक्सीडेशन होगा। और इधर अगर देखो इसके साथ कंपैरिजन करो कि सपोज टू भी ये नेगेटिव इतना है और इतना है, तो इसमें ना बाजी कौन खेलेगा, दैट मीन्स किसका SOP ज़्यादा होगा, SOP ज़्यादा होगा किसका, क्लोरीन का। तो जो एक्वास NaCl को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो, तो ऑब्वियसली कैथोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैथोड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बट एज पर द जनरल नॉलेज और एज एक्सपेक्टेड, इधर क्या होना चाहिए था, आपका एक्सप्लेनेशन सही है, बट ये क्या होना चाहिए था कि वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, और उसके लिए जो एग्जैक्टली कितने वोल्टेज में वो ऑक्सीडाइज होता है, -1.48 वोल्ट। कहने का मतलब अगर ऐसा होता है तो ये कम पॉजिटिव है, तो इसको ओवरकम करके कौन करेगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। सो यू कैन राइट इन दिस वे, what is it, see, but oxidation of water, yeah, that's what I told, oxidation of water is a slow process, right, at room temperature, right, and requires activation energy which is supplied in terms of voltage from battery, right. So the extra voltage
voltage to start the oxidation of water. Oxidation of water is known as over potential or over voltage, right? Okay, due to over voltage of O2, oxidation of water will not favor. Oxidation of water will not favor. That's what I exactly told to you, that oxidation of water क्या होगा, फेवर नहीं होगा, क्योंकि उसका ओवर वोल्टेज चाहिए उसके लिए, राइट? सो द वैल्यू ऑफ ओवर वोल्टेज डिपेंड्स. ओके, नाउ you have to note one more thing here, that the values of over voltage, the values of over voltage depends on type of electrode used. Type of इलेक्ट्रोड यूज्ड, दैट मीन्स आप कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड्स को आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स डिपेंड्स करेगा. फॉर एग्जांपल लिसन, फॉर ऑक्सीजन गैस ये ओवर वोल्टेज कितना होता है, वेरिएशन होता है. ये जो ओवर वोल्टेज चाहिए ये वेरिएशन होता है कहाँ से कहाँ, ओवर voltage varies from 0.52 to 0.45 तक चला जाता है, इतने तक. Got it? Now you have to remember here, what is it? For potential, that means for platinum electrode, क्या है, for platinum electrode, अगर आप platinum electrode यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, जो ओवर वोल्टेज होता है ना वो 0.25 वोल्ट चला जाता है, राइट? और यू कैन से फॉर प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, राइट? और स्मूथ इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो फॉर स्मूथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अगर यूज़ करोगे तो इसके लिए जो ओवर वोल्टेज होता है ना वो 0.45 वोल्ट तक चला जाता है. एक ये प्लेटिनम कौन सा है, प्लेटिनाइज्ड, राइट? ओके, सो here we can say therefore actual potential required for oxidation of water ये कितना होगा, जो SOP है वाटर का एग्जैक्टली, प्लस आपको ओवर वोल्टेज को ऐड करना पड़ेगा. और ये कितना, ये इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, इसका कितना था 1.23 था, प्लस ओवर वोल्टेज ये दर कितना आएगा 0.25 आएगा, और मिला के कितना होगा -1.48 वोल्ट चला जाएगा, राइट? और इसमें हम देखते हैं कि जो SOP था, SOP ऑफ क्लोराइड आयन, ये कितना था -1.35 वोल्ट था, राइट? सो हेंस वी कैन से दैट, सो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन गैस will favor and Cl2 gas will obtained
will obtained एट एनोड। हम एनोड में क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। सो नाउ डिस्कस द समरी ऑफ द रिएक्शंस। ऐसा है, देखिए वो क्या रहा है इधर, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर हर रिएक्शंस के लिए कि हम ऐसा देखें, स्टडी करें कि अच्छा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना है, रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ओवर वोल्टेज ऐड करें उसके बाद प्रोडक्ट लेंगे। जी नहीं, अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए लिख रहे हो तो आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक सो दैट बोर्ड एग्जाम्स में इतना डिप में पूछेगा। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया है और एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, दैट मीन्स ट्रिक्स सुपर ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, विद इन सेकंड आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बता सकते हो कि कहाँ कौन सा होगा। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट इट और यू नो नीड टू वदरिंग अबाउट इट, राइट। तो समरी देखिए इसका क्या क्या है। एक्चुअली देखिए कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ वाटर, राइट। सो रिडक्शन ऑफ वाटर कैसे होता है आपको पता ही है, और ये रिएक्शन आपको क्या करना है, 2-3 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, याद रह जाएगा, राइट। चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। ये कितना होगा, H2 गैस एवॉल्व होगा प्लस 2H एक्वस, राइट। कैथोड पे क्या हो, सॉरी एनोड पे क्या होगा, ऑब्वियसली दुनिया जानता है और गाँव के बच्चों को भी पता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। 2Cl नेगेटिव एक्वस टू गिव Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, सम कर दो तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 2Cl नेगेटिव विच इज़ एक्वस प्लस 2H2O विच इज़ लिक्विड टू गिव H2 गैस, 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड आउट, राइट, प्लस क्लोरीन गैस प्लस 2OH नेगेटिव प्लस ओके इतना ही है 2 एक्वस। नाउ सी सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, ओबियसली Na प्लस पड़ा हुआ है। हम इधर भी 2 मोल्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, Na प्लस लिख सकते हैं, और इधर भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सोल्यूशन में ही है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, देखिए इन दोनों को मिला के क्या आएगा, ओबियसली NaCl which is aqueous form react with water H2, नेट इक्वेशन से ऐसे दिखेगा, लिक्विड है, और इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स इन दोनों मिलके, राइट, प्लस क्या होगा H2 गैस एवॉल्व होगा प्लस क्लोरीन गैस, ये कैथोड में होगा और ये क्लोरीन गैस एनोड में प्रोड्यूस्ड होगा, राइट, एट एनोड, और ये बाई प्रोडक्ट है। ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है, ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक है, सो पीएच इंक्रीज, दैट मीन्स ग्रेटर देन 7, राइट। पर देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन भी है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोरो एल्काली प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, क्लोरो एल्काली प्रोसेस बोला जाता है, राइट, ओके, या। सो टुडे आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास हियर। देखिए एस के क्लास में क्या क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़े, सिंपल सी बात है। हम क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी हम क्या कर सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बनाता है, राइट। तो ये चीज़ें सीखी हमने, और इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, और उसमें जो कैथोड होता है वो ऑब्वियसली उसमें रिडक्शन रिएक्शंस होगा, बट हियर कैथोड इज ए नेगेटिव चार्ज एंड एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। एंड से हमने क्या क्या देखा कि रिडक्शंस ऑफ वाटर में क्या होता है, ऑक्सीडेशंस ऑफ वाटर कैसे होता है, राइट। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस हमने क्या क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना सीख रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आने वाले लेक्चर में आप इसमें प्रो बन जाओगे, इट्स माय गारंटी, यू नो नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स, राइट। एंड या हमने क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, उसमें तो बहुत सिंपल है, राइट। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl हमने जस्ट सीखना स्टार्ट किया है, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे आने वाली क्लास में।
आज के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. बाय.